Hi there, this is Dr. CK Narayan coming to you from NeoTrader yet again with another video. And the subject matter of today's video is going to be RSI, Relative Strength Index. And RSI is a hugely populated indicator, and everybody across the world, I think, would be using RSI as one of their primary oscillators whenever they are doing any analysis. Now, just as a brief background, RSI was introduced to the markets way back in 1978 with the eponymous book written by J. Willis Wilder. And ever since 1978, RSI has taken the markets by storm. I myself came across RSI somewhere around 1980 when the book actually hit Indian shores. And then, after we all read it, the few technical analysts who were around at that time in 1980, we were all so excited about the prospects that I think almost all of us switched to using the RSI. And it's now 42 years later that we are speaking about this particular item in 2022, end of, and RSI still continues to go strong. In between, there were modifications made to RSI by another famous gentleman, and his name was Andrew Cardwell, and Andrew Cardwell modified the levels that we were typically using as per Willis Wilder, and that has added a little more color to the usage and conclusions to be drawn from RSI. So RSI makes it to almost every technical analysis software and is very widely used, like I said, and it works beautifully across all time frames. Now the difficulty comes about people wanting to use it in multiple time frames. So when they put it on the chart, they find it difficult to correlate all their findings across multiple time frames. So this is a recognized problem. And to solve this problem to a good extent is how I have incorporated the RSI in my trading and analysis software, NeoTrader. And in NeoTrader, I have presented RSI in a somewhat different manner in the sense that the usage can be extremely easy and one can almost completely eliminate the reliance upon the chart for checking out on RSI. So that is what is going to be the subject matter of this video. So without much further ado, let us move towards logging on to NeoTrader and checking out the RSI page. चलिए देखते हैं न्यू ट्रेडर में RSI की क्या खूबियां हैं. तो एज यूजुअल न्यू ट्रेडर में लॉग इन करें और गो टू द सेक्शन वेयर यू विल गेट टेक्निकल इंडिकेटर व्यू. वहाँ क्लिक करें और यहाँ पर है RSI ट्रेंड्स. तो RSI ट्रेंड्स को क्लिक करें तो RSI की पेज खुल जाएगी. तो RSI की पेज खुलेगी. तो लेट मी जस्ट मेक यू अवेयर व्हाट इट इज़. यहाँ पर आप देखें तो दो सिलेक्शंस है. एक है हीट मैप जो जो है ये जो डिस्प्ले है. दूसरे है लेवल्स, दैट इज़ अनदर फॉर्मेट वी कैन लुक एट. और यहाँ पर आपकी यूनिवर्स है. जिस यूनिवर्स आप देखना चाहेंगे तो यू कैन पुट योर ओन, यू कैन मेक योर ओन वॉच लिस्ट या यू कैन टेक फ्रॉम द प्री डिफाइंड वॉच लिस्ट. और यहाँ पर टाइम फ्रेम भी दिया हुआ है 30-60. और केवल RSI एकमात्र इंडिकेटर है नियो ट्रेडर में जहाँ मंथली लेवल्स भी इंक्लूड किए गए हैं. ये मैंने इसलिए किया है क्योंकि RSI की जो यूसेज है वो बहुत वाइड स्प्रेड है. तो लोग मंथली RSI भी यूज़ करते हैं, अनलाइक सो मेनी अदर indicators where they are using mainly 30-60 और बिलो टाइम फ्रेम एंड देन डेली एंड वीकली. तो अधिकतर बाकी सारे जो इंडिकेटर्स हैं न्यू ट्रेडर में वो 30-60 डेली वीकली होते हैं. केवल RSI मंथली तक अवेलेबल है. तो आप टाइम फ्रेम चूज़ करिए, उस टाइम फ्रेम के हिसाब से ये हीट मैप में स्टॉक्स डिस्प्ले होगा. तो करंटली जो आप अभी देख रहे हैं दिस इज़ 30 मिनट्स and this video is recorded on 24th of November in the morning. So this is the market scenario on 30 minutes. तो आप अभी देखेंगे there are two
क्लासिफिकेशंस बुलिश एंड बेरिश, और ये बुलिश एंड बेरिश की क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो मैं शुरू में ही बता दूं. इट इज़ बेस्ड अपॉन द लेवल ऑफ द RSI. RSI जो इंडिकेटर है, जैसे आप लोग सब जानते हैं, it is scaled on a 0 to 100 basis, and generally we are looking at certain ranges in the RSI. तो जहाँ पर RSI की रीडिंग जो है 60 से अधिक है उसे हम बुलिश मानते हैं, और 40 से कम जो रहता है उसे हम बेरिश मानते हैं. सो all the stocks which are here, IEX, Atul, Ramco Cement, ABFRL, etc., ये सारे के 30 मिनट RSI जो है वो 40 से कम है. और ये जो स्टॉक्स है ICICI, GI, NMDC, RCTC वगैरह वगैरह जो है 30 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट में इनके RSI इज अबाउट 60. तो ये बेसिक आपका डिफॉल्ट स्क्रीन आएगा व्हेन यू ओपन द RSI पेज. यहाँ आप देखेंगे तो एक छोटा सा बटन दिया हुआ है कॉल्ड क्यूरेटेड. ये क्यूरेटेड का मतलब है जब भी इसको आप ऑन भी करेंगे तो वो लिस्ट थोड़ा सा बदल जाएगा. ये लिस्ट इसलिए बदलेगा क्योंकि जो RSI है उसकी थोड़ी सी स्मूदन वैल्यू लेते हैं, एंड द स्मूदनिंग फैक्टर आई हैव इम्पार्टेड इज 9 पीरियड मूविंग एवरेज ऑफ द RSI. तो ये RSI is not above 60, but the 9 period RSI, 9 period moving average of the RSI is moved above 60. तो यहाँ पर क्या है, थोड़ी सी स्मूदनिंग आ जाती है. और whenever you are looking at smoothened data, two things happen. पहला है कि वो थोड़ा सा श्योरर डेटा रहता है, but the offset of that is that it is a little more delayed. तो आप without curation आप जब चेक करेंगे तो दिस इज RSI लेवल अबाउ 60. विथ क्यूरेशन आप इसको देखेंगे तो दिस इज RSI 9 पीरियड एवरेज विच इज अबाउ 60. सिमिलरली यहाँ पे भी आप क्यूरेटेड डालेंगे तो ये भी लिस्ट चेंज हो जाएगा. यहाँ पर RSI 9 पीरियड इज बिलो 40. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्यूरेशन. ये आपको एक सेलेक्टर करके दिया हुआ है सो दैट दोज हु वांट टू सी a little more smoothened version or little less faster moving thing, they can use this. ठीक है, ये curation यूज करना नहीं करना ये पूरा आप पे डिपेंडेंट है, ये फैसिलिटी दी गई है. ओके, सो नाउ व्हेन वी कम टू इट यू हैव ऑल ऑफ दीज. अच्छा, इसमें एक तो लेवल तो पता चल जाता है कि भाई कोई भी स्टॉक मुझे इंटरेस्ट है तो उसमें बेसिकली मोमेंटम होना चाहिए. RSI क्यों देखते हैं? वी आर लुकिंग एट इट फॉर मोमेंटम. और मोमेंटम क्यों देखते हैं? बिकॉज मोमेंटम प्रीसीड्स प्राइस. ये एक लॉजिक है जिसके बेसिस पे ये मोमेंटम इंडिकेटर का पूरा दौड़ चलता है. और मोमेंटम प्रीसीडिंग प्राइस, दैट इज मोमेंटम विल मूव फर्स्ट एंड प्राइस विल मूव नेक्स्ट. ये जो है इट इज़ अ वेरी सटल थिंग. ऐसा नहीं कि मोमेंटम 4 दिन पहले से ही टर्न हो जाएगा, नहीं. इट इज कोइंसिडेंट विद प्राइस बिकॉज मोमेंटम इंडिकेटर्स जो है वो प्राइस से डिराइव किया हुआ चीज़ है. मोमेंटम इंडिकेटर्स आर नॉट इंडिपेंडेंटली मेड. तो ये प्राइस से ही निकल आता है, तो थोड़ी बहुत तो इसकी रिलेशनशिप रहेगी. बट इन सो फार एज मोमेंटम एज अ सब्जेक्ट मैटर विद इन टेक्निकल एनालिसिस कंसर्न्ड, ये फिलॉसफी इसके पीछे ये है कि मूवमेंट होने से पहले मोमेंटम का एप्लीकेशन होना बहुत ज़रूरी है. इसलिए हमें मोमेंटम मेजर करते हैं और उस मोमेंटम को सर्टन लेवल दिए गए हैं. तो ये हम मान के चलते हैं कि जब 60 के लेवल से ऊपर RSI रिकॉर्ड हो जाता है तो उस स्टॉक में मोमेंटम का इजाफा हो रहा है. दैट इज़ द होल लॉजिक. तो यहाँ आप देखेंगे आज के तारीख 24 नवंबर इन द मॉर्निंग व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग दिस, देयर आर सो मेनी स्टॉक्स where the 30 minute RSI is above 60 and there are so many stocks where it is below 40. तो यहाँ से एक चीज़ तो स्ट्रेट अवे आपको मालूम पड़ जाता है विच इज़ द वैल्यू ऑफ अ हीट मैप स्टाइल प्रेजेंटेशन. यहाँ पे हीट मैप स्टाइल प्रेजेंटेशन में सबसे अहम चीज़ क्या है कि स्ट्रेट अवे यू आर एबल टू जज द ब्रेड्थ ऑफ द मार्केट. आप इसको देखेंगे आप तो इधर इट इज़ वेरी एविडेंट कि जो बुलिश स्टॉक्स है वो बेरिश स्टॉक से अधिक है. Which means what? That the market today in a lot of stocks is witnessing momentum. Which means that यहाँ पे सारे stocks में जो भी यहाँ पर नाम है उसमें थोड़ी ट्रेंड की गुंजाइश है, थोड़ी मूवमेंट की गुंजाइश है. तो इसमें आप अगर काम
करें तो आपको थोड़ी मुनाफा का भी गुंजाइश हो सकती है। दैट इज द होल आइडिया। वी आर ट्राइंग टू पुट द ऑड्स ऑन आवर साइड। सो सबसे पहले ये देखते हैं कि मार्केट की लीनिंग किस दिशा में है, बुलिश है या बेरिश है या न्यूट्रल है। व्हेन दे आर अबाउट इक्वल देन यू शुड थिंक इट इज न्यूट्रल। तो ये हर टाइम फ्रेम में एक स्ट्रोक में देखा जाए। और यहाँ सबसे बड़ा फर्क आता है विद अ चार्ट एंड नियो ट्रेडर। चार्ट में आप एक साथ इतने स्टॉक ऑन अ हीट मैप स्टाइल चीज में आप देख ही नहीं सकते। आपको चार्ट बाय चार्ट आपको देखना पड़ेगा कि वेदर द आरएसआई इन द 30 मिनट टाइम फ्रेम इज बुलिश और नॉट। सो दिस मेक्स द जॉब वेरी डिफिकल्ट एंड नियो ट्रेडर मेक्स इट वेरी इजी। नंबर टू, चार्ट में आपको अगेन दूसरे टाइम फ्रेम देखना हो तो आपको या तो चार्ट को डिवाइड करें, चार चार विंडो रखें आपके मॉनिटर पे और उसमें अलग अलग टाइम फ्रेम लोड करें और वैसे देख सकते हैं। बट अधिकतर लोग क्या है, सिंगल मॉनिटर से काम करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो लैपटॉप्स में काम करते हैं और अन्य लोग भी हैं जो अपने मोबाइल में देखते हैं। ये सारे स्क्रीन्स में मल्टीपल विंडो व्यू इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। जिनके पास मल्टी मॉनिटर हो, उस फैसिलिटी हो, दे कैन पुट डिफरेंट चार्ट्स ऑफ डिफरेंट टाइम फ्रेम्स एंड हैव अ लुक एट इट। बट न्यू ट्रेडर करने से, चाहे आप इसको मोबाइल में देख रहे हो, अपने आईपैड पे देख रहे हो या अपने सिंगल मॉनिटर पे देख रहे हो लैपटॉप में, इट डजेंट मैटर। ऑल इट रिक्वायर्स इज अ सिंगल क्लिक। 30 का आप 60 करिए तो 60 में सारा चेंज हो जाएगा। 60 मिनट पे भी आप देख रहे हैं कि बुलिश जो नेम्स है वो बेरिश से कई गुना से अधिक है। इट इज ऑलमोस्ट ट्वाइस, राइट। सो देर इज अ क्लियर एविडेंस ऑफ 30 मिनट एंड 60 मिनट। अधिकतर हम ये टाइम फ्रेम के नीचे न्यू ट्रेडर में एनालाइज करने नहीं जाते हैं एक्सेप्ट फॉर सम स्पेसिफिक पेजेस। जहां तक हम कोई कोई भी इंडिकेटर या कोई भी टूल सेट को देखते हैं उसको 30 या 60 मिनट टाइम फ्रेम में देखते हैं, क्योंकि इससे नीचे जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट बहुत लोग यूज करते हैं, 10 मिनट करते हैं, 5 मिनट करते हैं और बैंक निफ्टी वाले 2-3 मिनट का भी यूज कर लेते हैं। आप ये बात समझ लीजिए कि जितना लोअर टाइम फ्रेम होगा उसमें नॉइस या डिस्टर्बेंस ऑन द चार्ट बहुत अधिक होगा। तो अनलेस यू आर एन एक्सपर्ट एट हैंडलिंग ऑल दैट डिस्टर्बेंस एंड ऑल दैट नॉइस, और आप उस नॉइस के भीतर से असल में जो हो रहा है उसको देख सकते हैं, तो लोअर टाइम फ्रेम बिकम्स डेंजरस। तो 30 मिनट इज अ रीजनेबली गुड टाइम फ्रेम टू लुक एट इंट्राडे टाइम फ्रेम। इसलिए हम सारे इंडिकेटर 30 मिनट से अधिक ही सेटिंग कर रखे हैं। तो 60 मिनट में जैसे कह रहा था, यहाँ पर भी आपको ब्रेथ दिखता है कि ब्रेथ इज क्वाइट पॉजिटिव। तो आगे जाकर के आप डे, यू कैन सी इन अ डे, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा है। आप यहाँ देखिए तो डेली आरएसआई for bullish and bearish is almost equal, which means that the shorter term, the intraday time frame is more bullish, whereas the daily time frame is somewhat neutral। ठीक है। और अभी जा करके वीकली भी देखो तो वीक में स्थिति सिमिलर है, बट अगेन बुलिश स्लाइटली बेटर है। तो वीकली ट्रेंड वॉज बुलिश, वो थोड़ा सा हल्का पीछे आ गया, रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होके डेली चार्ट में न्यूट्रल हो गया। और न्यूट्रल वाला चीज जो इंट्राडे चार्ट्स में आपको डिक्लाइन की तौर से दिखाई देगा, उसमें आज कोई परिवर्तन है। दे हैव ऑल बिकम बुलिश इन 30 एंड 60 मिनट। ये कंक्लूजन इमीडिएटली उभरता है। व्हाट अबाउट द मच हायर टाइम फ्रेम? तो वहां पर हम जा करके देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो मंथली टाइम फ्रेम में यू हैव अ स्टार्टलिंग चेंज। अभी यहां पर आप देखिए कि नंबर ऑफ बेयरिश स्टॉक्स इज वेरी वेरी स्मॉल and the number of bullish stocks is very large। तो clearly higher time frame जो है मार्केट की, that is very dominantly bullish। तो ये हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को इमीडिएटली क्लैरिफाई करती है। इफ यू आर अ लॉन्गर टर्म प्लेयर तो आपको तेजी ही करना है। इफ यू आर अ मीडियम टर्म प्लेयर आपको बुलिशली बायस्ड रहना है, क्योंकि वीकली में भी अभी भी आरएसआई आदि, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वन एस्पेक्ट ऑफ आरएसआई व्हिच वी हैव सीन सो फार, राइट। So even with this, you are able to go from deriving a view to creating a positioning of how you should deal in the market। तो आप मीडियम टर्म कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा बुलिशली बायस रहना है। आप डेली में काम करते हैं, फ्यू डेज ट्रेडिंग एटसेट्रा, तो आपको थोड़ा सा न्यूट्रल रहना है इन द सेंस कि आप ब्रेकआउट को चेस नहीं करें, आप कोई सपोर्ट वाला चीज़ को खरीदे, थोड़ा सा केयरफुली स्टॉक सिलेक्शन किया जाए
और जिसमें मोमेंटम है, जो यहाँ पर नाम आपको प्रकट हुए हैं, उसमें आप काम अगर करने की कोशिश करें तो योर रिजल्ट्स कैन बी बेटर। बट थोड़ी सी सावधानी की ज़रूरत है, क्योंकि ऑन द डेली टाइम फ्रेम मोमेंटम ऑन द बेसिस ऑफ RSI इज क्वाइट न्यूट्रल। बट अगर आप डे ट्रेडर हो या वन डे ट्रेडर हो तो आपके लिए मैदान बिल्कुल साफ है ऑन द बुलिश साइड। तेजी आप बिल्कुल कर सकते हैं, और इंट्राडे के पैमाने से जो आप कर रहे हैं वहां पर आप ब्रेकआउट का काम भी कर सकते हैं, बाई सपोर्ट का काम भी कर सकते हैं। आपको शॉर्टिंग का काम बहुत होशियारी से करना पड़ेगा, बहुत सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है इट इज लीनिंग टुवर्ड्स द बुलिश साइड। तो ये सारे जो फाइंडिंग्स है ये इमीडिएटली उभर आता है अक्रॉस द मार्केट, अक्रॉस द मल्टीपल टाइम फ्रेम्स। ये पावर है न्यू ट्रेडर का कि आपको जो व्यू जो बनाना है मार्केट का, दैट यू कैन गेट इन अ जिफी। सो व्हाट वी से ऑलवेज इज दैट इफ यू यूज न्यू ट्रेडर, ये RSI की अपनी आज बात हो रही है, बट इफ यू यूज एनी पेज इन न्यू ट्रेडर you will get a market view of what should be done under less than 1 minute. I will say as low as some 15 or 30 seconds you can get a market view कि भाई मार्केट में ये काम करना है, आज तेजी का काम करना है या मंदी का काम करना है या दोनों नहीं करना है, या सामान्य से करना है, थोड़ा तेजी करना है, थोड़ा मंदी करना है। दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू डिसाइड व्हेन यू टेक अ ट्रेड। इसके बाद आता है कि किस स्टॉक में करूं, किस भाव से करूं, क्या एक्सपेक्टेशन से करूं, उसकी स्टॉप लॉस कितनी होनी चाहिए। ऑल दिस इज कमिंग लेटर। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज मैं व्यू क्या बना रखूं मार्केट के लिए, और नियर ट्रेडर के सारे पेजेस जो है वो इसी नजरिया से बनाया हुआ है कि भाई आपको एक व्यू जितने जल्दी हो सके आपकी व्यू बनना चाहिए, वो बन जाएगा यूजिंग न्यू ट्रेडर, जो शायद आपको चार्ट के जरिए करने के लिए काफी समय लगेगा। So this is an improvement on charting, and that is what the point I want to emphasize कि I have been using charts for more than 40 plus years। अब चल करके मैंने वहां से ये न्यू ट्रेडर बनाया है। ये इसलिए बनाया क्योंकि जो समय चार्ट के ऊपर बीतता है उसको कट शॉर्ट करे। इंसान के पास सिर्फ एक ही चीज का कमी होता है, वो है समय। वो किसी से भी अपन बोरो नहीं कर सकते, कहीं से भी अपन उधार नहीं ले सकते, किसी से भी अपन चोरी भी नहीं कर सकते। जिस समय है उतना ही समय है, और हर इंसान के लिए यही रूल लागू है। तो समय जितना अपना बच जाए उतने अपन समय के एंगल से धनी हो जाए, और वो होना बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो नाउ दैट वी हैव डन दिस, अभी एक दूसरा एस्पेक्ट भी मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अंदर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो ये नाम के नीचे देर आर 5 सर्कल्स। अब ये 5 सर्कल की जो कंसेप्ट है, दिस इज ऑल्सो अक्रॉस न्यू ट्रेडर, और ये 5 सर्कल्स है मल्टी टाइम फ्रेम इंडिकेटर। एक ही व्यू में, एक ही ग्लांस में आपको पता चल जाएगा कि RSI किस किस टाइम फ्रेम में बुलिश है या बेरिश है या न्यूट्रल है। तो आप फॉर एग्जांपल यहां देखिए M&M फाइनेंस, ये लेआउट है 30, 60 डेली, वीकली एंड मंथली इन एन असेंडिंग ऑर्डर। तो पहले जो सर्कल है वो 30 मिनट है। आप देखेंगे M&M फाइनेंस इज ग्रीन ओनली इन द 30 मिनट, राइट। पर आप NBCC छोड़िए, एक अच्छा सा स्टॉक देखते हैं जो हाईली ट्रेडेड है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ है जुबिलेंट फूड, विच इज क्वाइट अ पॉपुलर स्टॉक। अब जुबिलेंट फूड में आप देखें तो 30 मिनट ग्रीन, 60 minute is gray, daily is red, and then weekly and monthly are also gray। तो इसका क्या मतलब हुआ, जुबिलियंट फूड सिर्फ इंट्राडे में बुलिश है। अब आप जाएंगे इंट्राडे में थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम विच इज 60 मिनट। तो जो एंड ऑफ डे ट्रेडिंग करते हैं पूरा दिन का, उनको 60 मिनट चार्ट से वाकिफ रखना बहुत जरूरी है। तो 60 मिनट इज नॉट इन सपोर्ट ऑफ बुलिश ट्रेड्स, ओनली 30 मिनट इज इन सपोर्ट। 30 मिनट या उससे नीचे दे विल बी इन सपोर्ट ऑफ बुलिश ट्रेड्स इन जुबिलियंट फूड। वेयरएज इफ यू लुक एट डेली, डेली इज इन रेड। अब रेड में हो तो डेली में RSI इज एक्चुअली बेरिश, which means that RSI level on daily charts is below 40। तो अगर आप
हायर लेवल से आएंगे, इन द सेंस कि हायर टाइम फ्रेम। जो मेरे फ्रेंड है विशाल मलकन, he is trained with me many years and now he's an independently very famous trainer. Vishal has a nice nomenclature for this. He calls it the grandfather, father, and son kind of syndrome, which means that you start with the higher time frame, then go to the next lower time frame, then you go to the still lower time frame. तो यहाँ पर हमने 5 पीढ़ियों का सिग्नल आपको डाल दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रेट ग्रैंडसन टू फादर टू ग्रैंडफादर एंड ग्रेट ग्रैंडफादर। इसमें काफ़ी डिटेलिंग कर दिया है, तो आपको कोई भी 3 or 4 or 5 as it suits your convenience you can choose. Now in Jubilant Food, daily time frame is bearish, weekly time frame is neutral. अगर आप यहां से शुरू करते हैं मंथली इज न्यूट्रल, वीकली इज न्यूट्रल, तो इसका मायना क्या? अभी ये जो अब हमने लेआउट करे, इसका मायना क्या? इसका क्या उपयोग करें? हायर टाइम फ्रेम ऑलवेज रूल्स। मतलब जो हायर टाइम फ्रेम का सिग्नल है उसके अनुसार लंबे गाड़े का जो ट्रेंड है वो उसके अनुसार चलेगा। तो इफ हायर टाइम फ्रेम मंथली वीकली दे आर न्यूट्रल, इसका ये मतलब होता है कि एक्चुअली जुबिलेंट फूड इज अंडरगोइंग अ बिगर करेक्शन, जहां पर उसकी RSI हैज नाउ लाइंग between 40 and 60, because below 40 is bearish, above 60 is bullish. तो जाहिर है कि ग्रे है तो उसकी जो RSI वैल्यू है वो 40 और 60 के बीच में है, तो ये इमीडिएटली समझ जाता है। आपको कोई चार्ट देखने की आवश्यकता थी नहीं, इधर आपको देखते ही पता चल गया जुबिलेंट फूड ऑन वीकली एंड मंथली इसकी जो RSI लेवल है वो 40 और 60 के बीच में है। दैट मीन दे आर न्यूट्रल। तो न्यूट्रल है तो आप इसमें डायरेक्शनल काम नहीं कर सकते या बहुत शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन का डायरेक्शनल काम कर सकते हैं, तेजी का हो या मंदी का हो। हाँ, इसमें आप ऑप्शन का काम जरूर कर सकते हैं। जो 40-60 न्यूट्रल है वहां आप शॉर्ट स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैडल, कोई ट्रेंड आपको लोअर टाइम फ्रेम में मिलता है तो शॉर्ट कॉल, शॉर्ट पुट जो भी है वो आप शॉर्ट ऑप्शंस की ट्रेड जरूर ले सकते हैं। अब if you come down, the daily is bearish क्योंकि the daily in Jubilant Food is red. I hope everybody is able to see this and appreciate what I am saying. अगर daily bearish है तो again आप daily time frame में काम कर रहे हैं, इससे अधिक या जो ट्रेंड्स है, हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड्स है, वो तो न्यूट्रल है। अब जो चीज़ न्यूट्रल है वो बेरिश भी हो सकती है। तो अगर आपको चार्ट देख करके ये लगा कि ये बेरिशनेस की और ज़्यादा है तो आप यहाँ पर जा करके चार्ट को देख सकते हैं कि ये डेली बेसिस में काम करूं या नहीं। अगर काम करना है तो मुझे शॉर्ट का काम करना है। अगर इसमें बुलिशनेस कहाँ आ रहा है, इट इज कमिंग ओनली इन 30 मिनट। अगर आप डे ट्रेडर नहीं हो तो ये जो 30 मिनट का जो सिग्नल है बुलिशनेस का वो आपके लिए लागू नहीं है। ये जो सिग्नल है ये 30 मिनट पे कोई खरीदने की कोशिश कर रहा है, देन he should realize that he is actually trading against a bigger trend. 60 मिनट भी उसके फेवर में नहीं है, डेली तो वेरी डेफिनेटली उसके फेवर में नहीं है, और वीकली मंथली जो है वो न्यूट्रल है। तो 5 में से 4 चीज उसके साथ नहीं है, उसके बावजूद भी कोई जा करके इसमें तेजी कर लेगा तो देन ही इज टेकिंग अ वेरी हाई रिस्क। तो अभी हम देखिए एक स्क्वायर अपन ने देखा यहाँ पर जुबिलेंट फूड के, ये RSI बेसिकली बुलिश इसलिए है क्योंकि ये हम 30 मिनट की टाइम फ्रेम में देख रहे हैं। इसको हम अगर डेली डे टाइम फ्रेम कर दे तो आपको जुबिलेंट फूड यहाँ कहाँ नजर आएगा। अच्छा, इसमें हाउ डू यू फाइंड द स्टॉक? अगर आपको स्टॉक फाइंड करना है तो कंट्रोल F दबाइए, कंट्रोल F विच इज द स्टैंडर्ड विंडो सर्च फंक्शन। आप यहाँ पर एक विंडो खुल जाएगा, वहां जा करके आप उसका सिंबल डालिए जुबिलियन फूड। तो व्हेन यू टाइप JUBL, आप इधर देखें नीचे वो हाईलाइट हो गया येलो में, इट इज शोइंग यू जुबिलियन फूड इन बेरिश लिस्ट। तो आपके जो चोजन टाइम फ्रेम है, जो जिस टाइम फ्रेम में आप काम करना चाहते हैं वैसे आप आपके सिग्नल्स को देख सकते हैं। दैट इज द एडवांटेज, एंड बाय मेकिंग दिस इनटू अ मल्टी टाइम फ्रेम व्यू, I think it gives you an extraordinary power to control what you are doing, and that is the key.
यही सीक्रेट है मार्केट का, टू बी इन कंट्रोल, कि मैं जो काम कर रहा हूं वो मेरे पूरे होशो हवासों में कर रहा हूं और मैं हमेशा मेरे एक्शन के कंट्रोल में रहूंगा। मार्केट की वदगट से मेरी इमोशंस में बहुत ज़्यादा स्विंग नहीं होना चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा भावुक नहीं होना चाहूँगा। तो नियो ट्रेडर विल हेल्प यू डू दैट। अब इसको आई आई ट्रस्ट दिस मच इज क्लियर अबाउट हाउ दिस इज टू बी डन। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द मार्केट फॉर एग्जांपल, तो हाईएस्ट टाइम फ्रेम में जा करके देख लीजिए, मंथली में जाइए। तो मंथली में जाएंगे तो यहाँ ढेर सारा चीज़ मिल रहा है। तो आप यहाँ जाइए और यहाँ देखिए, अभी फॉर एग्जांपल मंथली में कहाँ सर्कल्स आर मोर, okay, which are the ones with more circles, meaning how many time frames are bullish, उसको सबसे पहला चुनिए। तो अभी आगे का जो न्यू ट्रेडर वर्जन होगा वहां पर मैं सॉर्टिंग भी देने वाला हूं बाय सर्कल्स। इस वर्जन में नहीं है, तो बहुत ही जल्द वो वाला जो मॉडिफिकेशन है वो एडिशन भी आ जाएगा, जहां पर डायरेक्टली आप देख सकेंगे कि हाउ मेनी आर हैविंग मोर सर्कल्स। तो यहां आप आए तो बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए, ऑल 5 सर्कल्स आर ग्रीन। तो इसका ये मतलब है कि बैंक ऑफ बड़ौदा इज अमंग द मोस्ट बुलिश स्टॉक्स इन द मार्केट टुडे। आईसीआईसीआई बैंक, ऑल 5 सर्कल्स आर बुलिश। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 4 आउट ऑफ 5 आर बुलिश। सिर्फ 30 मिनट जो है वो न्यूट्रल में है। ठीक है, ये मंथली का अपन ने ले लिए जस्ट टू फैसिलिटेट कि मुझे हायर टाइम फ्रेम वाला चाहिए जहां पर बुलिश हो, ताकि मुझे हायर टाइम फ्रेम के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। हायर टाइम फ्रेम विल टेक केयर ऑफ द लोअर टाइम फ्रेम इन ड्यू कोर्स। अगर लोअर टाइम फ्रेम में कोई फॉल भी आ गई तो हायर टाइम फ्रेम विल आफ्टर सम टाइम पुल इट अप। या पुट इट अनदर वे, लोअर टाइम फ्रेम अगर घट रहा है तो वेरी सून एज एंड व्हेन इट रीचेस सम सपोर्ट, it will reverse from there. तो you know that State Bank of India is green in 4 circles, अभी ये न्यूट्रल है। तो आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने लिस्ट में लगा के रखिए, जैसे ही 30 मिनट टाइम फ्रेम उसका बुलिश हो जाए तो आप उसमें नया एंट्री तेजी का काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ आप आए तो भारती एयरटेल मंथली, वीकली, डेली तीनों टाइम फ्रेम ग्रीन में है, मतलब बुलिश है। व्हाट इज नॉन बुलिश एंड एक्चुअली रेड मतलब बेरिश है, वो है 60 मिनट और 30 मिनट। इसका ये मतलब है कि भारतीय एयरटेल आफ्टर अ नाइस मूव, उसमें ऑन एन इंट्राडे बेसिस और अ वेरी शॉर्ट टर्म बेसिस वहां पर एक रिएक्शन चल रहा है। अब चूंकि ये तीनों हायर टाइम फ्रेम बुलिश है, तो हमें ये देखना है व्हेन डज द लोअर टाइम फ्रेम टर्न बुलिश। जैसे ही वो टर्न हो जाएगा, the lower time frame will get aligned with the higher time frame. जब lower time frame align हो जाता है higher time frame में, तब जाकर के थोड़ा सा बड़े पैमाने का तेजी होता है। तो you can take multi-day trades, you can take multi-week trades. So all of this become possible, and that is the way to use this RSI pitch. Otherwise, everybody was just looking at RSI at a certain level, deciding buy or sell based on that, एंड देन जंपिंग इनटू द फ्री। और अधिकतर समय ऐसे जो ट्रेड लिए जाते हैं वो पिटते ही है, या उसमें रुपया नहीं बनता है, वो खाली कहीं टाइम पास करता है या कुछ ना कुछ हो जाता है, फिर आप कोई इमोशन में बह जाता है मार्केट के अप्स एंड डाउन्स में, और वो ट्रेड अधिकतर आपके लॉस में कटते हैं। बाय यूजिंग नियो ट्रेडर एंड लुकिंग एट इट फ्रॉम अ मल्टीपल टाइम फ्रेम एंगल एंड डिसाइडिंग विच आर द करेक्ट वंस टू बी बॉट और सोल्ड and when are they to be bought and sold, it will save you a lot of bother. It will make your trading a lot more precise. आपकी जो एक्शन रहेगी उसमें प्योरिटी रहेगी, और प्योरिटी एक्शन में आ जाएगा तो अपने आप रिजल्ट भी प्योर हो जाएगा, और रिजल्ट भी अपना पैलेटेबल हो जाएगा। जो रिजल्ट अपन चाहते हैं वो रिजल्ट पाने के लिए आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। दैट इज द होल आइडिया। आइए बेरिश साइड में भी देखें, बेरिश साइड में देखे तो यहाँ पर पीएल है और बायोकॉन है। बायोकॉन हैड रिसेंटली अ गुड रैली, इसलिए इसमें तो यहाँ पर अधिक सी व्हाई एम आई नॉट रियली लुकिंग एट पीएल, बिकॉज पीएल में रिसेंटली एक कुछ कॉरपोरेट इवेंट हुआ था, सो उसकी वजह से थोड़ा सा डेटा में कहीं और डिस्टर्बेंस हो सकता है। सो
I don't want to take a risk that there might be something wrong in the data and that is why the signals are coming. So I would इग्नोर स्टॉक्स. ये एक कैवेट के तौर से मैं बता रहा हूँ, एक छोटा सा सावधानी के तौर से बता रहा हूँ कि जहाँ भी कोई स्प्लिट हो जाए, एक्स बोनस हो जाए, एक्स राइट हो जाए या कोई बड़ा लार्ज डिविडेंड हो जाए, वहाँ पर प्राइस एडजस्टमेंट हो जाता है. बट कई कई बार जो है चार्ट्स में डेटा प्रोवाइडर्स इतना जल्दी उसको एडजस्ट नहीं करते हैं. तो व्हेन सच अ प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट, उस स्टॉक्स को और उस स्टॉक्स की एनालाइज बेस्ड अपॉन चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस डेटा, आप उससे थोड़ा दूर रहें टिल इट गेट्स ऑल एडजस्टेड वेरी वेल. इसीलिए इसी कारण से मैं पीएल के जो 3 सर्कल दिखाई दे रहे हैं मुझे, मंथली, वीकली एंड डेली, उसको मैं थोड़ा सा नज़रअंदाज कर रहा हूँ. और बाकी के मैं देखूँ तो यहाँ पर आई एम नॉट रियली सीइंग एनी स्टॉक विच इज़ वेरी डिस्टिंक्टली बेरिश, क्योंकि मंथली पैमाने पे कोई भी स्टॉक डिस्टिंक्टली बेरिश नहीं है. अगर मेरा ध्यान मंदा है और मुझे मंदी का ही काम करना है तो मैं वीकली में स्टेप डाउन करूंगा, जहां मुझे काफ़ी कुछ मिल रहा है. तो मैं यहाँ जाके देखूं तो यू हैव इंटेलेक्ट डिज़ाइन एंड देन यू हैव एम्फेसिस and then you have I'm looking for IT names because all of them were wrong. You got Bsoft, you have several IT names will be there here. You have pharma names like Divi's Lab is on the bearish side, Aurobindo Pharma is bearish, right? You had Wipro also in IT. So you have sectors का कोई इसमें आपको झलक दिख रहा है नहीं, वो आपको एक नोटिस करना है. ये तो हम जानते हैं कि कई समय से आईटी और फार्मा काफ़ी दबाव में है. तो दैट इज़ व्हाट आई लुक फॉर फर्स्ट, कि वेयर द सेक्टर ट्रेंड इटसेल्फ हैज़ बीन क्वाइट बेरिश, सो इट इज़ ईजी फॉर मी टू पिक एनी स्टॉक. अभी एक स्टॉक यहाँ है अतुल. अतुल में कॉर्पोरेट एक्शन है या नहीं मुझे तो याद नहीं आ रहा, बट एज फार एज आई नो इट इज़ नॉट देयर. सो नाउ इट इज़ वेरी एविडेंट दैट वीकली, डेली, 60 मिनट, 30 मिनट, ये सारे बेरिश है. तो यहाँ पर कोई भी रैली आए तो उस रैली में मुझे ये शेयर को बेच के काम करना है. तो रैली आए वो मुझे कैसा पता चलेगा? 30 मिनट पे ये ग्रीन होगा या 60 मिनट पे ये ग्रीन होगा और ये डेली वीकली रेड में ही रहेंगे, या धीरे धीरे चलते ये मंथली भी रेड हो जाएगा. तो ये जब ग्रीन होंगे तो मुझे पता है कि उसमें रैली हो रहा है, तब जा करके मैं ये स्टॉक को क्लोजली ट्रैक करूंगा. तो वॉच लिस्ट बनाना और एकदम पॉइंटेड वॉच लिस्ट बनाना, वो एक ज़बरदस्त आपको हेल्प आ जाएगा न्यू ट्रेडर को यूज़ करने से. ये सारे चीज़ मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि चार्ट के ज़रिए करना पॉसिबल है, बट इट इज़ वेरी वेरी लेबोरियस. एंड I have been doing charting for 45 years, so when I tell you that all this work will be laborious, please do take my word seriously on that. I have tried to make it all easy, save your labor, save your time, make your action very precise, and cut it down to the chase. Exactly what I should do in which stock and when. That is the whole goal. So आज का वीडियो के लिए इतना ही. What I have covered here is mainly 2 things. There are many more things for me to cover in RSI, which I will do in a subsequent video. So this is what I wanted to cover. More details about RSI, particularly on its let's say characteristics, alongside showing you how it can be done on NeoTrader. So folks, I trust you had some bit of learning with the RSI as depicted on NeoTrader. I'm sure you can see the fantastic advantages of looking at RSI from a multi-time frame basis, and how it adds to the richness of our analysis, and how so very easily you can do it with NeoTrader. That's a whole crux behind designing of NeoTrader. Primarily, I want the software to save time, and by bringing multi-time frame analysis into it, I give you the facility to add power to your analysis. That's the goal of NeoTrader. Save your time, add power to your analysis. And third,
drop this confusion about looking at charts and looking at multiple indicators and going from one place to another. Like I keep saying in many of my videos, charts are very good. I have built my whole life around charts and I continue to do that. But if there is a better way of looking at charts, which is what the new trader is built upon, then that is what we should use. Technology is allowing us to do all this, and new trader is a huge leap in technology as applied to technical analysis. So I hope you enjoyed this video. Thanks for joining us on this video. If you liked it, please hit the like button, share it with your other people, subscribe to our channel, be a part of us, and spread the good word. We have many such videos which have already been recorded and many more to come. And I want you to join us and be part of the ever growing New Trader family. Until I see you on the other side of another video, this is Dr. CK Narayan signing off now and saying goodbye and stay safe.